अपना नाम लिए वगैरह अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Sir, currently I'm residing in Paliganj, that is in the district of Patna. I did my 10th and 12th from DAV Public School, that is in Hazaribagh, sir. And then I pursued my BLLB honors. ओके। I completed it in 2022, sir. एलएलएम में आपका डिजिटेशन टॉपिक क्या था? My dissertation topic was arrest and detention, a critical study. पुलिस ऑफिसर्स विदाउट वारंट किन किन ग्राउंड पे अरेस्ट कर सकते हैं? When there is an offense committed which is the cognizable in the presence of police officer, when the person is the proclaimed offender, अंडर विच आर्टिकल एंड विच कोड? under IPC, sir. Proclaimed offender, it is the list which is mentioned under the CRPC, sir. That is under the section 82. ओके। आप Yes, जज sir. क्यों बनना चाहते हैं आप? Uh, from the very beginning, sir, I was aspiring to become a judicial officer because a person who belongs to a very humble background, who does not have any access to particular resource, and if even a misdeed happens to him, his last resort is that I'll see you in the court, sir. So this particular statement of a particular a person belonging to a humble background motivate me continuously to become a judicial officer, sir. जुडिशियल ऑफिसर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन दोनों कीवर्ड्स में, टर्म्स में क्या फर्क है? सर जैसे कि टर्म जुडिशियल ऑफिसर है, जो भी कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर उन्हें जुडिशियल ऑफिसर हम कहते हैं, बट जो जुडिशियल ऑफिसर वो क्राइम से रिलेटेड डील करते हैं या फिर उनके प्रोसीजर से रिलेटेड डील करते हैं, उनको मैजिस्ट्रेट कहते हैं। तो फिर जज क्या होते हैं? जज जो वो होते हैं सर जो कि सिविल मैटर से डील करते हैं। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर। ओके। अच्छा ये बताइए कि ट्रायल कौन कौन सी कोर्ट्स में हो सकता है? ट्रायल सर इट कैन बी मेड इन द लोअर कोर्ट सर. For an instance, I'll give you some examples, like the court of second class, court of first class, magistrate of first class, and yes, sir. ओके। आपकी हॉबीज है आउटडोर स्पोर्ट्स। Yes, sir. आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स में डिफरेंट बताइए क्या होता है? Outdoor sports means the physical activities which involve the participation of the bodies का each part जहाँ पे participate होता है, that is the outdoor sports. And indoor में जहाँ body का actively participation नहीं होता है, उसे हम indoor sports कहते हैं. हॉकी क्या है? हॉकी आउटडोर है इंडोर है? Sir, hockey is the outdoor sports. और टेबल टेनिस? Table tennis is also a outdoor sports, लेकिन इसको इंडोर में खेला मतलब इंडोर प्रेमाइसेस में खेला जाता है, but it's a outdoor sports. कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लेटेस्ट 3 अमेंडमेंट बताइए। 101th amendment sir relating to the GST. यस। Then there is 103rd amendment sir relating to the EWS, and there is 104th amendment relating to the constitutional validity to the socially educationally backward commission sir. 104 तो नहीं है, वो 102 है। ओबीसी कमीशन की बात कर रहे थे आप। 104 रिलेटेड टू द एंग्लो इंडियन प्रोविजंस को इसमें रिपील किया गया था एंड स्टेट प्रिपेयर ओबीसी लिस्ट। ओके सर। अच्छा मुझे बताइए कि अभी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? Honorable Justice Mr. K. Vinod Chandran. एंड फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द पटना हाई कोर्ट? I'm not able to recall his whole name sir, but it is Justice Indu. प्लीज काइंडली कंटिन्यू, रेस्पेक्टेड मम्मी सर। उनका नाम सर? So, give me 4 examples in which secondary evidence relating to documents may be given. Where the primary evidence is in the possession of the adverse party, primary evidence has been destructed or disposed of, sir, or with the prior permission of the court, which court the permit आप दे सकते हैं. Shubham, what is primary evidence? Primary evidence as the most reliable evidence which are given in the original form and at the instance of the court to examine it. Okay, and
Which section of Indian Evidence Act talks about presumption of ownership? Sorry, sir, unable to recall it right now, sir. Okay, and can you define admission under Section 17? Yes, sir. Any statement made by a person which suggests an inference regarding the relevant fact or the fact in issue is known as admission. Okay, and who is the decree holder? The person in whose favor the decree is passed is called the decree holder. And judgment debtor? Against whom the decree is passed, sir, it is the judgment debtor. Okay, and what is the difference between misjoinder and non-joinder of parties? Non-joinder of the party can lead to the dismissal, sir, but misjoinder of the party cannot lead to the dismissal of the suit, sir. Okay, sure. And Shivam, what is the difference between holding over and holding out? So, holding out, it means, sir, to represent someone other by the way of conduct or by the way of words, sir. It is generally the stopple, sir. And Okay. holding over, sir, I'm unable to recall it, sir. Okay. You heard about Pinel's rule under Indian Contract Act. Sorry, sir. Currently, I'm unable to recall it right now, sir. आपने क्वांटम मेरिट थ्योरी के बारे में सुना है? Yes, sir. बताइए क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से क्या इनकॉर्पोरेट किया गया है? I don't know the exact provision, sir, but if you permit, I can explain the quantum merit, sir. Okay. Every cases or every contract has its own fact and circumstances, and the cases should decide upon the that fact and circumstances. It varies from case to case and the fact and circumstances of the cases. That is quantum merit. Okay, sure. Thank you so much. Kindly continue, Ravi sir. Thank you. शिवम ये बताइए कि what is the प्रणाम, sir. procedure? प्रणाम. Shivam, what is the procedure which the judicial officer always kept in mind while they are dealing with the summary trial? Summary trial, sir. जी. To dispose, it is mainly come into action, sir, for the expeditious trial, sir, Okay. and where the offense is not punishable with death, not imprisonment of life, and it should not exceed imprisonment beyond 2 years, sir. Okay. तो शिवम क्या आप मुझे बताएंगे कि आमतौर पे समरी ट्रायल के अंदर मैक्सिमम कितनी सजा एक जुडिशियल ऑफिसर दे सकता है किसी भी व्यक्ति को? सर 2 साल तक या फिर 2 साल से कम तक, सर. शिवम 2 साल तक या 2 साल से कम तक का तो वो ट्रायल कर सकते हैं. अगर मान लीजिए ट्रायल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो मैक्सिमम कितनी सजा दे सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे. आर यू श्योर कि जितने का वो ट्रायल कर सकते उतनी ही सजा देंगे, उससे कम नहीं दे सकते हैं? सर उससे कम का भी दे सकते हैं, सर, लेकिन वो हमेशा 2 साल से कम के ही होंगे, सर. चलिए एक बार आप इस प्रावधान को है ना थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, सर. शुभम, आपने सीआरपीसी में 154 पढ़ा होगा एफआईआर, और आपने भारतीय हुए हैं. 0 एफआईआर का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसको Okay. जुडिशियल डिसीजन से लाया गया था. और 173 जो आप बीएनएसएस की बात कर रहे हैं, उसमें सर ये 0 एफआईआर को वो मेंशन किया गया. व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिस. ठीक है. दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है सर, यहाँ पे ईएफआईआर का प्रावधान लाया गया है. अगर Okay. आप पुलिस स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो आप ईएफआईआर कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 दिन के अंदर उसे जा करके उस पुलिस स्टेशन में आपको साइन करना अनिवार्य है. ओके. तीसरा कोई अंतर? अ, कुछ ऐसा है जहां पे डीएसपी से इजाजत लेनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने से पहले? अगर जो अक्यूज्ड है सर वो इन्फर्म पर्सन है या फिर वो बुजुर्ग है, अबव 60 है, तो इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आपको कंडक्ट करना पड़ेगा विद द प्रायर परमिशन ऑफ द डीएसपी. ओके. ये बताइए तलाक उल बिद्दत क्या होता है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द सिया लॉ, सर, जिसमें ये Okay. टेम्पररी फॉर्म ऑफ मैरिज होते हैं, सर. तो शिवम, आपने टाइम टेम्पररी फॉर्म मैरिज का जिक्र किया है, तो मुस्लिम में एक कॉन्सेप्ट आपका और है मुता मैरिज. तो क्या मुता मैरिज में भी डाइवोर्स जैसी चीजें होती हैं या नहीं होती हैं? सर मुत्ता मैरिज सर जनरली जो होते हैं सर वो प्लेजर्स के लिए किए जाते हैं, सर. ओके.
जी सर। बट प्लेजेस के लिए किए जाते हैं, लेकिन उसका एक फिक्स टेन्योर होता है। क्या फिक्स जी सर। टेन्योर से पहले क्या उसको वेव ऑफ किया जा सकता है? सर जैसे कि हमें पता है कि जो मैरिज होते हैं सर वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ भी जो रूल्स होते हैं वो चेंजेस किए जा सकते हैं अगर वो बिफोर एक्सेप्टेंस अगर ऐसा कुछ है तो। ओके, अब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया है तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? सर देयर मस्ट बी द वैलिड प्रपोजल, वैलिड एक्सेप्टेंस, एंड फॉर दैट देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन सर। ठीक है, ये बताइए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि कंसिडरेशन सर डिफाइन करता है कि आपका कंसेंट फ्रीली लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है। ठीक है, आपसे मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि एक बच्चा माँ के गर्भ में है, क्या कोई प्रॉपर्टी उस गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ट्रांसफर की जा सकती है या नहीं, और अगर हाँ तो किस प्रावधान के तहत? सर इसका जो प्रावधान है वो सेक्शन 13 ऑफ द टीपीए एक्ट में दिया गया है। उस बच्चे को ट्रांसफर की जा सकती है लेकिन उसके लिए प्रायर इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना जरूरी है सर। प्रायर इंटरेस्ट या लाइफ इंटरेस्ट? If a person, if a child has come into the existence of a mother womb, it will be treated as the living person sir। तो इसमें आपको फुल इंटरेस्ट आप उसमें वेस्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि ये अनबॉर्न के कैटेगरी में नहीं आता है। एवरीथिंग इज गुड, थोड़ा बेसिक प्लीज कर लेना, गलत आंसर से बचे, जैसे बिल्कुल गलत आंसर नहीं करना है। अच्छा, एक बार आपके इस इंटरव्यू में जब आप क्वेश्चंस का आंसर देते वक्त सोच रहे हैं तो आपने पूरी गर्दन ऐसे कर ली है, ठीक है, जी सर। इस तरीके से। मतलब ये कब किया आपने? जब आप क्वेश्चन को थॉट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप जो है सोचते वक्त भी आई कांटेक्ट बराबर बना के रखेंगे। ऑल ये ऑनलाइन है तो ओके आप तो सर। अब आप ही के कैमरे पे देखेंगे, लेकिन वहाँ तो कैमरा नहीं होगा, वहाँ तो पैनलिस्ट बैठे होंगे, तो ये हैबिट वहाँ और ज़्यादा हो जाएगी। ऑफलाइन में निगाह बचाने की कोशिश करते हैं हम लोग ऑटोमेटिक, जब बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट बैठे होते हैं। तो इस पे ध्यान रखना कि आई कांटेक्ट बराबर मेंटेन रहे आपका। आंसर अगर मान लीजिएगा 4 पैनलिस्ट बैठे हैं, 1 2 3 4, तो आपको चारों को एड्रेस करते हुए अपना आंसर देना है, बस इस तरीके से। ऐसे नहीं करना प्लीज, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट? हाँ, ठीक है सर। अगर आप, ये एक अच्छी आदत है कि आप परमिशन ले रहे हैं, बहुत अच्छा। और जो क्वेश्चन नहीं आता ना, आप सीधा सॉरी बोल दीजिए। और जितना भी अभी टाइम है, मतलब ये हम काफ़ी सेटिस्फाई हैं आपसे, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा समय है ना, प्लीज़ चीज़ों को रिकॉल करिए और बेसिक चीज़ें आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लें। आउटडोर जो गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, इनको आप और अच्छे से क्लैरिफाई कर लेना विद करंट। एंड जैसे सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट है 2023 और 24 की लीगल न्यूज़ है, उनको और थोड़ा सा आप अच्छे से कर लेना, ठीक है? कुछ पूछ तो समरी ट्रायल का जो थोड़ा सा ना उसमें थोड़ा सा मुझे मिल जाता सर, वो हमें। कौन सा आप इसका बताइए। शुभम, अगर आप समरी ट्रायल को देखेंगे ना, जब आप इसके पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, जी तो सर। वहां पे आपको पता चलेगा कि समरी ट्रायल आमतौर पे आपके जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं वो, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद हाई कोर्ट इंपावर्ड करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड सेकेंड क्लास क्लास। को। जी जब सर। आप बैरक को थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे तो पनिशमेंट वाला पार्ट आता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पे मैक्सिमम 6 मंथ की सजा ही दी जा सकती है। ओके सर। आप जब बैरक के सेक्शंस को पढ़ेंगे ना, अगर मैं गलत नहीं, ममित सर भी यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर देंगे, पनिशमेंट वाले पार्ट में मैक्सिमम 6 मंथ की सजा ही समरी ट्रायल में हो सकता है। ये बात अलग है कि ट्रायल वो सिर्फ 2 साल तक के केसेस का ही करेंगे, और जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है जिनको हाई कोर्ट इंपावर्ड करता है, ये सिर्फ उन्हीं केसेस का ट्रायल करते हैं जो मैक्सिमम 6 मंथ तक या पनिशमेंट वाले पार्ट है। लेकिन जब हम सजा की बात करते हैं ना, तो सजा सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ तक ही ये दे सकते हैं। सर ये जो प्रणाम वाला जेस्चर है, जैसे बोर्ड के सामने जो चेयर के बगल में खड़ा होकर के, जी प्रणाम सर, प्रणाम मैम, ये अगर जेस्चर प्रणाम सही है करना सर? है तो ऐसे ही आपको करना है, हल्का सा बस। ठीक है, प्रणाम सर, प्रणाम। ठीक है। अगर नहीं तो मैं तो कहूंगा कि आप थोड़ा सा प्रोफेशनली वेरी गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग रेस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या है कि लॉ का जो बेसिक्स है एटलीस्ट वो एटलीस्ट अभी तक क्लियर है सर, या फिर मतलब और उसको ब्रश अप थोड़ा? नहीं, ठीक है, आपका अच्छा है, आप बहुत ही मतलब बहुत ही सदैव आंसर दे रहे हैं, मुझे पसंद आया आपका। और आप बिल्कुल ऐसी आंसर दीजिए, और जहाँ आपको थोड़ा सा और बताने की जरूरत हो वहाँ आप बताइए, लेकिन ठीक है आपका।
और जैसे आपने खुद बताया कि आपको थोड़े से सोचने का टाइम और ज़्यादा चाहिए, तो बस वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बाकी ओवरऑल अच्छा है आपका। बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं जी होना है, सर। और क्योंकि आपका जी अपना सर। टाइम भी नहीं है, और आपको बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, बस आप इसी को सोचते रहिए, बस इन शॉर्ट रिवाइज करते रहिए आप। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट।